اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سادہ لوگ اس کذاب کے جھانسے میں آسانی سے آنے لگے، جن کی بدولت اس کی فوجی اور سیاسی قوت بڑھنے لگی۔ اب اس کذاب کے فتنے کا فوری خاتمہ بہت ضروری ہو گیا تھا۔ ناظرین، ان حالات کا اندازہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تھا، جنہیں اب خلیفہ اول کی طرف سے اس کذاب کے خاتمہ کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ اس لیے آپ برق رفتاری سے منزلوں پر منزلیں طے کرتے مسیلمہ کذاب کے سر پر آ پہنچے۔ عقبہ کے مقام پر دونوں کی فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ جب مسیلمہ کذاب کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ 40,000 فوجیوں کے ساتھ میدان جنگ میں اترا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اونچی جگہ پر اپنے لشکر کو روک لیا۔ یہاں سے آپ دشمن پر اچھی طرح نظر رکھ سکتے تھے۔ مسلمہ کذاب نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ دائیں حصہ کی سپہ سالاری نہار الرجال کے سپرد کی، بائیں حصے کا سردار حکم بن طفیل کو مقرر کیا، جبکہ قلب کی قیادت خود سنبھال لی اور جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے مسیلمہ کذاب اور اس کے پیروکاروں کو دین حق کی دعوت دی۔ جواب میں مسیلمہ کذاب نے مسلمانوں کو اپنے خود ساختہ دین کی طرف بلایا۔ پھر دونوں لشکر آمنے سامنے سفارا ہو گئے۔ مسیلمہ کذاب ایک فریبی اور مکار شخص ہی نہیں بلکہ بطور جنگی ماہر کے اس نے بڑا نام پیدا کیا تھا۔ اس نے جنگ کی چال چلی تاکہ مجاہدین تھک جائیں تو ان پر دائیں بائیں سے طوفانی حملے کر کے تہس نہس کر دیا جائے۔ اس کے برعکس حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے سامنے سے سیدھا حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تاہم آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک طرف ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے تو دوسرے بازو کی کمان زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سنبھالے ہوئے تھے، جبکہ قلب کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنے ہاتھ میں رکھی۔ یہ 632 عیسوی کی بات ہے۔ دسمبر آدھے سے زیادہ گزر چکا تھا۔ ایک صبح مسیلمہ کذاب اور لشکر اسلام کے درمیان ایسی خون ریز جنگ کا آغاز ہوا جس کی مثال اس سے پہلے کی اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی۔ کذابی لشکر کی طرف سے دائیں طرف کے سپہ سالار نہار الرجال نے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ مقابلے پر زید بن خطاب آئے۔ دونوں کے درمیان مردانہ وار مقابلہ ہوا، مگر نہار الرجال زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ پھر گمسان کا رنگ پڑا۔ یوں لگتا تھا جیسے فریقین فتح و شکست کے لیے نہیں بلکہ زندگی اور موت کے لیے برسرے پیکار ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مجاہدین بڑھ چڑھ کر مرتدین پر حملہ آور ہو رہے تھے اور چاہتے تھے کہ کذابی لشکر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ دوسری طرف مسیلمہ کذاب اپنے لشکر کو گھما پھرا کر دفاعی انداز میں لڑ رہا تھا اور چاہتا تھا کہ مسلمان تھک جائیں تو انہیں گھیرے میں لے کر پیس ڈالے۔ کذاب کی طرف سے دفاعی جنگ کے باوجود جنگ میں بے پناہ شدت پائی جاتی تھی۔ زمین خون سے سرخ ہو رہی تھی۔ زمین پر جا بجا لاشیں بکھرے پڑے تھے یا زخمی پڑے آہو بکا میں مصروف تھے۔ مجاہدین چونکہ تعداد میں قلیل تھے اور انہوں نے جارحانہ حکمت عملی اپنا رکھی تھی، اس لیے ان پر آہستہ آہستہ تھکن غالب آنے لگی۔ مسلمہ اسی لمحے کے انتظار میں تھا۔ اس نے تازہ دم دستے جنگ میں بھیج دیے جو یکایک دفاعی جنگ چھوڑ کر مجاہدین پر جارحانہ حملے کرنے لگے۔ کذابی لشکر کے تازہ دم دستوں نے تھکے ہارے مجاہدین پر بے پناہ دباؤ بڑھا دیا۔ لشکر اسلام حملوں کی شدت سے پسپا ہونے لگا۔ مسلمانوں کی پسپائی کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ وہ تعداد میں کم تھے اور لڑتے لڑتے تھک چکے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے ایسی بے شمار جنگیں لڑی تھیں جن میں دشمن کی تعداد ان سے کئی گنا زیادہ تھی، مگر مجاہدین نے اللہ کے فضل و کرم سے انہیں شکست فاش دی۔ اس بار پسپائی کی ایک بڑی وجہ لشکر اسلام میں اختلاف کا پیدا ہونا تھا۔
उस मौका पर मुहाजिरीन और अंसार इस बहस में पड़ गए कि उनमें से ज्यादा बहादुर कौन है। ये वो नाजुक वक्त था कि इस्लामी लश्कर दुश्मन की ताकत से ज्यादा अपनी नाइत्तेफाकी के बायस तबाही के धाने पर पहुंच चुका था। दुश्मन का दबाव मुसलसल बढ़ रहा था और इस्लामी लश्कर में शिकस्त के आसार पैदा होना शुरू हो गए थे। नाज़रीन, हजरत साबित बिन कैस रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत जैद बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत हुज़ैका रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसे बहादुर और नामवर जंगजू जुर्रत व बहादुरी की नई तारीख रकम करते हुए जामे शहादत नोश कर चुके थे। उस लम्हे वो शख्स आगे बढ़ा जिसके बारे में अरब कहा करते थे कि वो जंग का पांसा पलटने और हारी हुई जंग जीतने में बेमिसाल है। वो शख्स आगे बढ़ा जिसके लिए रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बुलंद करके दुआ मांगी कि परवरदिगार, खालिद तेरी तलवार है, इसे हमेशा फतह नसीब फरमाना। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस नाजुक सूरत हाल में अपने हवास को मुजतमे किया। फिर महाजरीन और अंसार की बहादुरी का झगड़ा यूं निपटाया कि महाजरीन का लश्कर अलग बना दिया और अंसार का लश्कर अलग, बल्कि तीसरा लश्कर बद्दुओं का तश्कील दिया और फरमाया कि अब साबित करो कि तुम में से अल्लाह के ज्यादा करीब कौन है। नाजरीन, अल्लाह के इस सिपाही ने इस्लामी लश्कर की कमजोरी को देखते ही देखते दुश्मन के लिए कैसी खौफनाक और तबाहकुन ताकत में बदल दिया था। फिर आप रजी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों से यूं मुखातिब हुए, अल्लाह के मुजाहिदों, हमने मैदान जंग में बाहमी इत्तेहाद को नजरअंदाज किया है। कोई नहीं बता सकता कि तुम में से कौन बहादुरी से लड़ा और कौन पहले भागा, मुहाजिर, अंसार या बद्दू। अब मैंने तीनों को अलग अलग कर दिया है। बहादुरी और बुजदिली का फैसला तानाजनी से नहीं, मैदान जंग में होगा। उठो और दुश्मन पर जवाबी हमला करो। अगर एक गिरोह पर दुश्मन का दबाव बढ़ जाए तो दूसरा उसकी मदद करे। हमें आज साबित करना है कि मुसैलमा की नबूवत झूठी है। याद रखो, अगर आज हम शिकस्त खा गए तो झूठी नबूवत तुम पर मुसल्लत हो जाएगी। हम मुसैलमा के गुलाम और हमारी औरतें मुर्तदीन की लौंडियां होंगी। नाज़रीन, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के खिताब के बाद तमाम लश्कर ने कस्में खाई कि वो आखिरी दम तक दुश्मन से लड़ेंगे। फिर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के हुक्म पर इस्लामी लश्कर अल्लाह अकबर के नारे लगाता हुआ दुश्मन पर टूट पड़ा। फरीकैन एक दूसरे को सफाई हस्ती से मिटाने के लिए बढ़ चढ़कर हमले कर रहे थे। कभी इस्लामी लश्कर का पल्ला भारी नजर आता तो कभी झूठे नबूवत के दावेदार मुसैलमा कज़्ज़ाब के फौजी मैदान मारते नजर आते। मौरिखीन के मुताबिक मुसलमानों को ऐसा सख्त और खूनरेज मार्का पहले कभी पेश नहीं आया था। मैदान लहू रंग हो गया था और हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं। नाज़रीन, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के जहन ने सूरत हाल का तज्जिया किया तो एक ही बात समझ में आई कि जब तक मुसैलमा कज़्ज़ाब नहीं मारा जाता दुश्मन को हराना मुहाल है। उस फैसले पर पहुंचकर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने नजर मैदान जंग पर डाली और फिर अल्लाह का नाम लेकर तने तनहा दुश्मन पर टूट पड़े। जो सामने आया मारा गया। मुर्तदीन के कई नामी गरामी जंगजू हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो की तलवार का निशाना बने। आप दुश्मन को मारते काटते मुर्तदीन के कल्ब तक जा पहुंचे और मुसैलमा कज़्ज़ाब को मुकाबले की दावत दी। कज़्ज़ाब जो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के गैज़ो गज़ब और जंगी महारत के हाथों अपने सूरमाओं को गाजर मूली की तरह कटते देख चुका था, घबराकर अपने मुहाफिजों के हल्के में लश्कर के मजीद अंदर चला गया। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पलटकर मुजाहिदीन को यकदम हमला करने का हुक्म दिया और खुद मुसैलमा के मुहाफिज दस्ते पर टूट पड़े। मुसैलमा के मुहाफिजों का हल्का हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो की तलवार से तहस नहस हो गया। दुश्मन पलटकर भागा। मौरिखीन के मुताबिक ये लड़ाई इस कदर खूनरेज थी कि जिस घाटी में ये लड़ाई हो रही थी उसका नाम ही खून की घाटी पड़ गया। मुर्तदीन की एक बड़ी तादाद ने भागकर
हदीकियतुर रहमान नामी बाग में पनाह ले ली। ये किला नुमा वसी व अरीज बाग था जिसका दरवाजा बेहद मजबूत था। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो मुजाहिदीन के साथ दुश्मन का ताकुब करते हुए उस बाग के दरवाजे तक पहुंच चुके थे और सोच रहे थे कि मजबूत दरवाजे को कैसे खोला या तोड़ा जाए। उस दौरान एक बहादुर सिपाही बरा बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो आगे बढ़ा और उसने इसरार किया कि उसे बाग के अंदर फेंक दिया जाए ताकि वो बाग का दरवाजा खोल दे। जब बरा रजी अल्लाह ताला अन्हो का इसरार हद से बढ़ा तो उसे बाग की दीवार पर चढ़ा दिया गया। नाज़रीन, उस अल्लाह के सिपाही ने अंदर कूदकर दर्जनों दुश्मन सिपाहियों का घेरा तलवार के जोर पर तोड़कर बाग का दरवाजा खोल दिया। फिर इस्लामी लश्कर सैलाब की मानंद बाग में दाखिल हो गया। यहां मुर्तदीन इस कसरत से मारे गए कि इस बाग का नाम ही हदीकियतुल मौत पड़ गया। नाज़रीन, अब मुसैलमा कज़्ज़ाब को अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। वो अपने चंद मुहाफिजों के साथ बाग से भाग निकलने की कोशिश में वहशी बिन हर्ब की बर्छी का निशाना बनकर शदीद जख्मी हो गया। कज़्ज़ाब अपने पेट से बर्छी निकालने की कोशिश कर रहा था कि अबू दजाना रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आगे बढ़कर तलवार के एक ही वार से मुसैलमा कज़्ज़ाब का सर तन से जुदा कर दिया, जिसे देखकर बचा हुआ लश्कर सर पर पांव रखकर भाग खड़ा हुआ और यूं तारीख इस्लाम की खून रेज तरीन जंग खत्म हो गई जो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के फौजी कारनामों में एक यादगार कारनामे का इजाफा कर गई। नाज़रीन, अब खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो की नजरें हीरा पर लगी थीं। दरियाए फुरात के किनारे बसा ये शहर आतिश परस्तों यानी आग की पूजा करने वालों का गढ़ माना जाता था। उस इलाके पर अजादिबा नामी शख्स हुकूमत करता था। अजादिबा ने खुरनक नाम का एक ऐसा शानदार महल बनवा रखा था जिसकी मिसाल मदाइन से रूम तक नहीं मिलती थी। उस बेमिसाल महल के बागात दूर दूर तक फैले हुए थे। कहा जाता है कि उस महल से कसरा ईरान की ज़ियाफत तबा का सामान मुहैया किया जाता था। जब मुजाहिदीन इस्लाम ने कश्तियों में सवार होकर उस शहर का रुख किया तो अजादिबा ने दरियाए फुरात के पानी का रुख नहरों की तरफ मोड़ने का हुक्म दे दिया। उस काम की निगरानी के लिए उसने अपने चहीते बेटे और वली अहद को भेजा। उसका मकसद यह था कि इस्लामी लश्कर की कश्तियां दलदल में फंसकर तबाह हो जाएं। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो जो एक इंतहाई माहिर जंगजू थे, दुश्मन पर हमेशा नजर रखते थे। अजादिबा की चाल जूं ही खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के इल्म में आई तो उन्होंने चंद बिजली सिफ्त सवारों को खुश्की के रास्ते उस जगह पहुंचकर दुश्मन को तबाह करने का मिशन सौंप दिया। कहा जाता है कि ये सवार रेत के बगोले उड़ाते इस कदर हैरान कुन रफ्तार से बंद बांधते दुश्मन के सर पर जा पहुंचे कि उसे खबर ही न हुई। अल्लाह के उन सिपाहियों ने आन की आन में उस दुश्मन दस्ते को खाक में मिला दिया जिसकी कयादत हीरा का वली अहद कर रहा था। नाज़रीन, अजादिबा अभी अपने लाडले बेटे की मौत पर सख्ता की कैफियत में था कि उसे ईरानी शहंशाह उर्द शेर के मरने की इत्तला भी मिल गई। यके बाद दिगरे उन वहशतनाक खबरों ने अजादिबा के हवास छीन लिए और वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर नामालूम मंजिलों का राही हो गया। कहा जाता है कि उसे आखिरी बार मदाइन जाने वाले रास्ते पर देखा गया था। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो जब खुरनक के शोहराए आफाक महल में पहुंचे तो उसे अपने मकीनों की बेवफाई पर अफसुर्दा और उजड़ा हुआ पाया। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो जब एहतियातन एक तवील चक्कर काट कर हीरा पहुंचे तो उसके दरवाजे खुले देखकर हैरान रह गए। वो शहर में दाखिल हुए तो पता चला कि शाही अफवाज मुसलमानों से खौफजदा होकर मदाइन की तरफ फरार हो गई हैं। हीरा फतह हो चुका था मगर उसके इर्द गिर्द 4 मजबूत और मशहूर किले थे जिन्हें फतह किए बगैर हीरा पर कब्जा कोई मानी नहीं रखता था। यूं तो उन 4 किलों के मुहाफिज बहादुर और जाबिर जंगजू थे मगर उनमें से कसर इब्ने बगीला नामी किले का
किलादार अब्दुल मसीह बिन उमरवान चारों किलों की असल ताकत माना जाता था। उसको इराक का शहजादा भी कहा जाता था। बाकी तीनों किलादार उसके जेर असर थे। अब्दुल मसीह एक हाजिर दिमाग, हाजिर जवाब, गैर मामूली दानिशमंद और जुर्रत व हौसला में बेमिसाल शख्स था। उस वक्त उसकी उम्र तकरीबन 100 साल थी। बुढ़ापे के बायस उसकी कमर झुक चुकी थी, मगर उसकी हिम्मत और हौसला बदस्तूर जमा था। नाज़रीन, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो ने किलादारों को कबूल इस्लाम या जिजिया की अदायगी का पैगाम भेजा। जवाब में चारों ने मुत्तफिका तौर पर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो की बात मानने से इनकार कर दिया और जंग करने का फैसला कर लिया। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो ने चारों किलों पर बैक वक्त हमला कर दिया। मुजाहिदीन को चारों जगह शदीद मुजाहिमत का सामना करना पड़ रहा था। फरीकैन के दरमियान मुकाबला सख्त था। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो चारों किलों को एक ही रोज में फतह करने के ख्वाहिशमंद थे, मगर किलों की बुलंद फसीलों से मुजाहिदीन पर तीरों और मंजनीकों के जरिए मट्टी और पत्थर के गोले की बारिश हो रही थी। दूसरी तरफ मुजाहिदीन के बुलंदी की तरफ चलाए जाने वाले तीर उस तरफ कारगर नहीं हो रहे थे। उस सूरत हाल से दुश्मन के हौसले बुलंद थे। इधर ये हालात खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो से भी पोशीदा न थे। उन्होंने बगौर सूरत हाल का जायजा लिया। फिर उन्होंने अपने लश्कर से माहिर और ताकतवर तीरंदाजों को अलग कर लिया। फिर उन्हें हुक्म दिया कि वो अपनी हिफाजत का ख्याल रखते हुए मुमकिना हद तक फसील के करीब हो जाएं और फिर अचानक ताक ताक कर फसील पर मुतय्यन दुश्मन को निशाना बनाएं। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो की माहिराना जंगी हिकमत अमली के नतीजे में देखते ही देखते फसील पर पहरा देते दर्जनों सिपाही मौत के घाट उतर गए। तीरंदाज मुजाहिदीन का यह हमला इस कदर अचानक, शदीद और मौसर था कि दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। आखिर चारों किलों के दरवाजे खुल गए और मई 633 की एक सुबह खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो और हीरा के सरदारों और उन किलादारों के दरमियान एक मुआहिदा पर दस्तखत हुए। मुआहिदे के तहत हीरा ने सालाना 1,90,000 दरहम अदा करने थे, जबकि बदले में इस्लामी फौज ने हीरा के तहफ्फुज की जिम्मेदारी कबूल की। हीरा और उन चारों किलों पर फतह पाने के बाद खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो ने अरब से बाहर हीरा को पहले इस्लामी दारुल हुकूमत का दर्जा दे दिया। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो ने यहां का नज्म नस्क मकामी सरदारों ही के हाथ रहने दिया और अपनी सारी तवानाइयां इर्द गिर्द के इलाका को फतह करने में सर्फ कर दी। उन्होंने इस्लामी लश्कर को कई हिस्सों में बांटकर आसपास के सारे इलाके पर कब्जा कर लिया। इस तरह जून 633 ईस्वी के आखिर तक दजला और फुरात का तमाम दरमियानी इलाका हीरा की उस इस्लामी रियासत के जेर नगी आ चुका था। नाजरीन, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो खलीफतुर रसूल जनाबे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो का पैगाम पढ़कर बेहद परेशान थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो ने उन्हें पैगाम भेजा था कि जब तक अयाज बिन गनम का लश्कर दोमता अल जंदल की मुहिम सर करके तुमसे नहीं आ मिलता, मदाइन की तरफ पेशकदमी न करना। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो इलाके की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए थे। उन्हें साफ नजर आ रहा था कि अगर मदाइन को इस वक्त यूं ही छोड़ दिया गया तो सदियों की शहनशाहत के जेर असर रहने वाली वसी इलाके पर फैली इन आबादियों में बगावत फूट पड़ेगी और इतने बड़े रकबा पर फैलने वाली बगावत से निमटना मुहाल होगा। ये हालात न सिर्फ खुद खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो और उनकी फौज के लिए इंतहाई खतरनाक होंगे, बल्कि अयाज बिन गनम का लश्कर भी संगीन खतरात में आ जाएगा। नजरीन, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो की परेशानी की वजह यह थी कि एक तरफ तो खलीफतुर रसूल रजी अल्लाह तआला अन्हो का हुक्म था जिसे वो नजरअंदाज नहीं करना चाहते थे, जबकि दूसरी तरफ हालात मदाइन के खिलाफ फौरी कार्रवाई के हक में थे। तीसरी तरफ इस बात का जरा भी इम्कान नजर नहीं आ रहा था कि अयाज बिन गनम जल्द ही दोमता अल जंदल के खिलाफ कामयाबी हासिल कर लेंगे। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो
कुछ देर गहरी गौर व फिक्र में डूबे रहे, फिर एक फैसले पर पहुंच गए।